गुड आफ्टरनून बच्चों। और टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ रिवीजन क्लास कि हम सब कुछ रिवाइज करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज व्हाट ऑल हैज हैपेंड इन द वीक में जो जो भी चीजें हुई हैं, वी आर गोइंग टू रिवाइज दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज पंक्चुएशंस, क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप. Question mark and full stop, these two are punctuations, and now we are going to revise them. So what are we going to do first? First we are going to see. So Didi is going to tell you all of this, and you are going to just see how Didi is doing. So सबसे पहले, where are you going? Where are you going? So when there is a question, so we put a question mark in the end, in the sense कि where are you going, then question mark. We have already learned about WH question words. So जब जब भी आप ये देखोगे तो आप ये देखोगे अगर इसमें WH क्वेश्चन वर्ड कोई आ रहा है, वेयर, हु, व्हाट, वाई, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. सो वेन एवर आर क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्वेश्चन वर्ड, हाँ उसके एंड में वी पुट दिस क्वेश्चन मार्क, वी पुट दिस क्वेश्चन मार्क. सो वेयर आर यू गोइंग के बाद आएगा दिस क्वेश्चन मार्क. आई एट अ रेड एप्पल. I ate a red apple. This is a normal statement. This is a normal statement, right? So we will have a full stop after this. We will put a full stop after this. Next we have who won the game. Who won the game? We are asking a question. We are asking a question. So a this will have a question mark. This. Next sentence we have she got on the bus. वो बस में चढ़ गई. She got on the bus. So this is a normal statement. So we'll put a full stop. What is your name? What is your name? We are asking a question. What is your name? आपका नाम क्या है? So we'll put a question mark. The cat is little. The cat is little. This is normal statement. So we'll put a full stop. We will put a full stop. Next we have how old are you? How old are you? We are asking a question, no? So we'll put a question mark. Then we went home. हम घर गए. We went home. This is normal statement. जहाँ पे हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट होता है. What do we do? We put a normal full stop. So we'll put a full stop. Next, what do we have? This is something you have to do by yourself. This is something you have to do by yourself. आपको ये खुद से करना है. These are the sentences. आपको सोचना है कि इसके एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे. Will you put a question mark here or will you put a full stop here? I like pizza. It is time for school. What time is it? Where is my mom? We eat lunch at 12. So Didi has already all the way shown through actions, but हमें अब ये खुद से अपनी कॉपी में करना है, and we will send this to Didi. तो आप यहाँ पर you will also pause the video, और वीडियो पॉज करके ये लिख के इसको सॉल्व करके कर सकते हो. नेक्स्ट वी हैव डू वी नो द मीनिंग ऑफ बिफोर. सो बिफोर का मतलब होता है के पहले, उससे पहले, यानी कि व्हाट कम्स बिफोर दिस, इससे पहले क्या आता है. तो बिफोर का मतलब होता है पहले, और आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद. अभी हम देखेंगे हम ये कहाँ यूज कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन द डेज ऑफ वीक. सो व्हाट डे कम्स बिफोर वेंसडे. व्हाट डे कम्स बिफोर वेंसडे. वेंसडे के पहले कौन सा दिन आता है. व्हाट डे कम्स बिफोर वेंसडे. सो यू हैव टू राइट दैट. नेक्स्ट वी हैव व्हाट डे कम्स आफ्टर मंडे. आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो मंडे के बाद कौन सा दिन आता है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट डे कम्स आफ्टर वेंसडे. What day comes after Wednesday. After we know the meaning, so this is not going to repeat the meaning again and again. After Wednesday क्या आता है. Then what day comes before Friday. Friday के पहले क्या दिन आता है. Next we have what day comes. What do we have next? After Tuesday. So what day comes after Tuesday. So we have to write all of this in our notebooks. We have already done this. Okay, this is just a revision. Next we have, we are going to tell meaning of these words. So Didi is just going to revise this for you. Awake,
हम पिक्चर को देखेंगे, फर्स्ट विल लुक एट द पिक्चर्स। हम पिक्चर देख के क्या लग रहा है, द गर्ल हैज जस्ट अवेकन, वो अभी अभी नींद से उठी है, वो बेड पर है। सो अवेक का मतलब होता है नींद से जगना, नींद से जागना। नेक्स्ट वी हैव विंड। We could look at all these pictures ki the clouds are there. We could see that our hairs are flowing, the broom is also flowing, everything is flowing, there is a mill. So wind का मतलब क्या होता है, हवा, यानी कि पेड़ जो उड़ रहे हैं वो हवा से उड़ रहे हैं, जो बाल उड़ रहे हैं वो हवा की वजह से उड़ पा रहे हैं। तो विंड का मतलब होता है हवा। वी कुड ऑलवेज लुक एट दिस पिक्चर्स, और हमें ये अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ब्लोइंग। What is Didi doing? What could we see in these pictures? The kid is blowing the candles. The girl is blowing the bubbles. The wind is blowing the men. यानी कि क्या मतलब होता है इसका, फूकना। ब्लोइंग मतलब होता है फूकना। We could always remember these things from our pictures. Next we have chirping. We could see all these birds singing. So what is the meaning of chirping? Chirping means when birds sing. Singing of birds or the sound of birds, जब birds का sound होता है, that is known as chirping. Now let's revise the WH words. We have already read WH words. So WH words क्या होते हैं? They are the question words. So सबसे पहले जब हमें when we have to ask any question regarding to things or action, we have to ask any question regarding to the things, कोई चीज या किसी एक्शन के बारे में, किसी काम के बारे में हमें क्वेश्चन पूछना होता है. सो वी यूज द व्हाट वर्ड. व्हाट इज लाइंग देयर, वहां पर क्या है, वी आर आस्किंग फॉर अ थिंग, नो. और व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो. सो वी आर आस्किंग फॉर अ एक्शन. नेक्स्ट वी हैव टाइम. whenever we ask anything about time, कि so we use when will you be going there, आप वहां पर कब जाओगे. या फिर when does sun rise, सूरज कब उगता है. so whenever we ask about any time we use when. next we have when we think of the reason. जब हमारे पास कोई चीज होती है, थिंक पर्टिकुलर थिंग इज गिवन एंड वी थिंक अबाउट सम रीजंस की व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसकी वजह क्या है. So it's why. ऐसा क्यों हुआ? Why are you feeling happy? Why are you feeling happy? So we'll then go and think about the reason कि why are you feeling happy? So I am feeling because. So whenever you provide this reason, आप ये reason provide करते हो, आप ये reason देते हो कि मैं खुश feel कर रहा हूँ क्योंकि, तो हम वहाँ पर why से लिखते हैं. Next we have places. जब हमें किसी जगह के बारे में पूछना होता है, when we have to ask about places, we ask for where are you going, where are you going. तो आप कहाँ जा रहे हो. जब हमें जगह के बारे में पूछना है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो हम where लिखते हैं. Next we have person. We have this little kid, we have this girl, this boy. So when we have to ask about any person, हमें इंसान के बारे में पूछना होता है, तो हम बोलते हैं who is that girl, वो लड़की कौन है. तो जब हम किसी इंसान के बारे में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम आगे लिखते हैं who. Next we have, we could see this in picture, no, कि two boys are fighting for a one single teddy bear. दो लड़के एक टेडी बेयर के लिए लड़ रहे हैं. तो जब हम ये बोलते हैं ये किसका है, whose teddy bear is this, whose teddy bear is this. तो whose का मतलब होता है किसका. जब हमें दो चीजों में हम बताते हैं ये मेरा है, सो whose teddy bear is this, this is mine, this is mine, ये मेरा है. तो जब हम पूछते हैं किसका है, तो हम यूज करते हैं whose. नेक्स्ट वी हैव टू मेक चॉइसेस. हमें दो चीजों के बीच में चुनना होता है. विच कलर डू यू लाइक द पिंक कलर और द ग्रीन कलर. सो व्हेन यू हैव टू मेक द चॉइस, आपको चुनना है दोनों में, तो आप यूज करते हो विच. यूज द विच कलर डू यू लाइक. तो कौन सा कलर आपको पसंद है, तो कौन सा का मतलब होता है विच. नो दीज all are the meanings. You can write all of these meanings in on your notebooks.
आप ये अपनी कॉपी में लिख सकते हो जिससे आपको हमेशा याद रहे व्हाट मतलब क्या, जब हमें किसी चीज या वी हैव टू आस्क अबाउट एनी एक्शन, व्हेन मतलब कब, व्हेन आर यू गोइंग देयर आप वहां कब जा रहे हो, व्हाई मतलब क्यों, व्हाई आर यू फीलिंग लाइक दिस आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो, वेयर मतलब कहाँ, वेयर आर यू गोइंग आप कहाँ जा रहे हो, हु मतलब कौन, हु इज देयर विथ यू आपके साथ वहां पर एक कौन है, हुज मतलब किसका, हुज टेडी बेयर इज दिस ये किसका टेडी बेयर है, विच मतलब कौन सा, विच कलर डू यू लाइक आपको कौन सा कलर पसंद है. So we have to write this in our notebooks. Next, we are going to revise the rhyming words. So we have a cat. Could we think of a similar sound word? Cat, rat. Very good. Next we have, this is a tap. This is a tap. Now could we think of tap? Could it be cap? Yes. So cat, rat, tap, cap. जहाँ पे हमें एक जैसा साउंड आता है सुनने में तो उनको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. जैसे कि ट्रेन, रेन, ट्रेन, रेन. आपको अगर ये और भी अच्छे से पढ़ना है सो दीदी हैज ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन राइमिंग वर्ड्स. आप एक बार वहां पे जाके रिवाइज करके फिर यहाँ पे कर सकते हो. दिस इज जस्ट अ रिविजन क्लास, तो हम जो पढ़ चुके हैं हम उसे वापस से पढ़ रहे हैं. सो इट्स ट्रेन, रेन. जब हमें साउंड सुनने में एक जैसा लगता है तो उसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. नेक्स्ट we have this, write in numbers. We have to write these numbers. 24, how do we write this in number? यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई, दीदी हैज रिटन दिस इन इंग्लिश. वी हैव टू राइट दिस इन नंबर. 24 ये हमें अपनी कॉपी में करना है. 66, 81, 45, 72. ऑल ऑफ अस हैव टू राइट दिस इन आवर नोटबुक्स. We will do this in our notebooks. Next we have expand in English. हम इनको इंग्लिश में लिखेंगे. 89, how do we write that? 57, 94, 30, 62. हमें इनको इंग्लिश में लिखना है. दीदी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस इन आवर क्लास. तो अगर हमें से किसी को भी दिक्कत आती है तो दीदी अभी ये नेक्स्ट आने वाली क्लास में यानी कि थर्सडे क्लास में वापस से कराएगी. सो विल अटेंड द क्लास प्रॉपरली. और अभी के लिए आप अपनी कॉपी में लिखोगे. All right, we all will do all of that things in our notebooks. हम वो सारा काम अपनी कॉपी में करेंगे and we will send the work to दीदी on her WhatsApp. हम दीदी को WhatsApp पे पर्सनल पे काम भेजेंगे. दिस इज वॉज जस्ट अ रिविजन क्लास. ये एक रिविजन क्लास थी कि हमने पूरे में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा था. तो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है सो यू कैन देन अगेन रीड फ्रॉम द वीडियो. हमारे वीडियोज ऑलरेडी बने हुए हैं. आप उस टॉपिक का वीडियो देखकर वहां से पढ़ाई कर सकते हो. थैंक यू.